Okay, so before moving on the session, let me introduce myself. My name is Mohammad Abis. I'm a senior software engineer. I'm working in the software industry since around 8 years, and I'm working on multiple technology stacks with front end and back end. So on the front end side, I'm working with Angular, React, and on the back end side, I'm working with Ruby on Rails and Node.js. So apart from that, I'm an open source contributor. I am a startup weekend winner from Nest.io in 2019. Other than that, I'm a book author, and apart from that, I'm an Angular core community member and managing GitHub Pakistan. So the main purpose of today's session is to get to know guys like what GitHub is and why we are using GitHub. So it's a very important thing if you are working in any organizations. Like after your graduation, you will be joining software companies, most of the guys. Or if you are working with SQA's team or backend team, so GitHub is actually the main platform you guys have to use on your daily days. So for today's talk, like what are the outcomes and what we are going to learn. So from today's session, we will be going to learn the hands-on for GitHub. So the first thing we will be going to look on is to making a repositories on your GitHub. So what are the repositories? Repositories are the main thing, like if you are starting with a project, or if you are joining a company, or if you are joining a team in your company, so that project should be on GitHub. So the main benefit of being on GitHub is to collaborate with your developers or to making your changes alone on the origin of cloud. So apart from that, on the second thing, we will be looking on the cloning of repository. The cloning of repository is like making your code or getting your code from cloud to your local dev environment. Apart from that, we will be looking on making the feature branches, how we are making branches, committing code, making a PR, giving a PR. These kind of things are maybe the things you don't know about this, but for today's session, this will be going to be a very helpful session for you guys. So I will 100% recommend if you guys are working on your FYPs, so make your FYPs making repositories on GitHub and assign those repositories to your teachers, because GitHub is actually a very centralized thing which you guys are going to use. Okay, so what GitHub is? So most of you guys are very familiar with GitHub. So GitHub is it's kind of an open source world. Open source world is mean like netherlands, like you are sitting from Pakistan and you are working with a team that's based in USA, Canada, or kind of. So the main use case is like I am working in a Canadian-based company. I'm working with a very big bank. It's kind of a CIBC bank name for it. It's a Canadian bank, government bank. So I'm working here from Pakistan. So our main functionality or main software is being located on GitHub. So we are around 2,500 developers from throughout the world. So we are working on making that bank systems towards across the users. Okay, so what GitHub is? GitHub is kind of GitHub is actually GitHub is actually a software that was GitHub was actually a separate team which was founded separately by a bunch of 6 developers. Those was graduated from Stanford University, but now GitHub is acquired by Microsoft. So like everything is open source. So if you guys want to take an inspiration how Windows 98 we were using, so Microsoft has made their software. They actually make their program open source on the GitHub. So you guys can go and you guys can see the code of Windows 98, how Microsoft has built their software. So as far as the statistics are concerned, 83+ million developers are using GitHub on their daily lives and 4+ million organizations are using it. There are around 200+ million repositories. That means 200+ million projects from throughout the world and throughout the companies, people are building it. Okay, so now the main thing is like if I'm talking only on slides, so you guys don't understand what I'm talking on, so let's have a hands-on session. So let's see how GitHub works in action.
you guys can go on github.com as I went on GitHub. So on github.com you can see a bunch of things. For now, everything here seems new to you guys. So I recommend you guys to work startly from the basic level. So if you guys can go in your plus thing here, you can see the options new repositories and import repositories. So remember, I was talking in the slide, we will be looking into making a repository. So that's how we can make a repository. Like assume that if you guys are working on any FIP project, so you guys can go in new repository. From here, new repository, you can select any name. Like I'm selecting a name here. Okay, some kind of description I can select here. Now there are actually kind of two things. If you guys want to make your repositories public, like everyone can see your code, so you guys can select public. If you only want your team to show, or you only want your team to commit the changes or see the changes, so you guys have to select the private version, and inside that private mode you have to invite your collaborators. Apart from that, you should have to add a README file while you are making a new repository. So in the license, there are actually MIT license, Apache license, so it's been totally dependent, so don't get rid of these things. You have to leave that thing empty, license to none, okay? If you create repository, so that repository should be on the cloud. There are actually another way to create repositories from your local machine directly from your CMDs, but that should be very new to you guys, so we will take that in advance in future. So this is how we can make our repositories. So here in repositories, if you can go in settings, so you can select the topics, like assume that your FIP is on JavaScript, so you can select any languages from here. So like I can select TypeScript, JavaScript on any kind of stuff, so those tags should be selected in your topics, right? So now, like assume that you are being collaborating on this, and people who want to show like how many JavaScript projects are hosted on GitHub, so your project should be in the name of those tags. Okay. The second thing is actually after making your repository, you have to clone that repository, because this repository is on the cloud, so you can't commit the code from the cloud. So you can go in here, a green button of code. You can go here and you have HTTPS version. So you can copy that URL from here. स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा आपकी स्लाइड है ना, कि स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। स्लाइड्स में कर भी रहा हूँ ये तो आप यहाँ से क्या करेंगे, आप क्लोन के ग्रीन बटन पे जाएंगे और यहाँ से आप URL इसका कॉपी करेंगे। ये आपकी रेपोजिटरी की URL है। इस रेपोजिटरी को अब मुझे जैसे अपनी मशीन में चाहिए, तो आई विल गो इन माय टर्मिनल और मैं अपनी लोकेशन सेलेक्ट करूँगा, मुझे कहाँ पे ये रेपोजिटरी चाहिए। ठीक है, तो मैं उस डायरेक्टरी के अंदर आ जाऊँगा। फिर दो कीवर्ड्स होते हैं, गिट क्लोन। गिट क्लोन का मतलब है कि आपका जो ओरिजिन पे जो आपने रेपोजिटरी बनाई वो आपको अपने लोकल मशीन में चाहिए, तो आप गिट क्लोन करके और जो URL आपने ऊपर से कॉपी किया आप वो पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आप जैसे पेस्ट करेंगे आपके पास ये आपको बता रहा होगा कि कितने रिसीविंग ऑब्जेक्ट हुए, आपके पास ये प्रोजेक्ट आ गया है नहीं आया है। अब इस प्रोजेक्ट को हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्ट आया है नहीं आया। मैंने बनाया था नेशनल यूनिवर्सिटी टेक टॉक के नाम से, तो ये मेरा प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया। इसमें मैंने एक रीडमी की फाइल क्रिएट की थी, तो वो रीडमी की फाइल आ गई। ठीक है, द सेकंड थिंग वी आर गोइंग टू लुक एट द थर्ड थिंग, सो इट्स काइंड ऑफ मेकिंग फीचर ब्रांचेस। ठीक है, अब फीचर ब्रांचेस का ये कॉन्सेप्ट होता है, जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम करते हो तो दैट सॉफ्टवेयर हैज टू वर्जन्स। Either you are building a new feature or either you are fixing a bug. सही है, तो अगर आप कोई फीचर डेवलप कर रहे हो तो फीचर स्लैश और जो भी आपके टिकट का नाम है वो मोस्टली जब आप किसी कंपनी में काम करोगे तो इश्यूज होते हैं, वो इश्यूज असाइन होते हैं। ठीक है, तो आप उनसे जो आप फीचर ब्रांचेस वगैरह बनाते हो, तो फीचर ब्रांचेस आप कैसे बनाते हो, आप इसका टर्मिनल खोलते हैं, आप यहाँ पे लिखते हैं गिट
git checkout dash b। git checkout मतलब कि git check अब आप किस ब्रांच पे खड़े हैं, जो नीचे मेन लिखा आ रहा है, ये वाला मेन, आपको बस शो नहीं हो रहा है, ये मेन लिखा हुआ है ना, F24D समथिंग। तो अभी आप किस ब्रांच में, अभी आप मेन ब्रांच पे खड़े हैं। अब मैं चाह रहा हूँ नहीं, मैं मेन ब्रांच में प्रोडक्शन ब्रांच है, मैं इस पे काम नहीं करना चाह रहा, तो मैं कोई मैं नया फीचर के नाम से ब्रांच बनाता हूँ। तो ब्रांच बनाने की कमांड ये git checkout dash b फीचर, और जो भी आप इसका नेम लिखेंगे तो वो ब्रांच बन जाती है, ठीक है। अब ब्रांच बन जाती है, लेकिन यहाँ पे ब्रांच बनाने के बाद इफ आई एम गोइंग इनटू माय गिटहब, तो अगर आप ब्रांचेस में जाएंगे तो आपके पास ये ब्रांच शो नहीं होगी, आपके पास स्टिल अभी मेन ब्रांच शो हो रही है। क्यों? क्योंकि गिटहब के दो वर्जन है, एक तो आपके पास ऊपर ओरिजिन क्लाउड पे रखा हुआ है, एक आपके पास लोकल मशीन में। आपने अभी लोकल मशीन में ब्रांच बनाई है, लेकिन यू डिडंट पुश दैट। सो आप यहाँ से इसको करते हो गिट पुश, ये आपसे पूछता है कि आप ओरिजिन पे पुश करो, तो आपको ये कमांड जस्ट कॉपी करके पेस्ट करनी है, ठीक है। अब इसने क्या किया, अब इसने आप देखोगे तो सेटअप ट्रैक रिमोट ब्रांच फ्रॉम ओरिजिन, तो अब इसने क्या किया, आपकी जो ब्रांच आपकी लोकल मशीन में थी उसने उसको क्लाउड पर पुश कर दिया। अगर अब आप देखेंगे तो आपके पास शो हो रहा होगा फीचर होम ऊपर, ठीक है। दिस इज हाउ वी आर मेकिंग न्यू ब्रांचेस। आप फीचर स्लैश होम बनाते हैं, या फिर आप अगर किसी बग फिक्स पे काम कर रहे हो तो आप फिक्स स्लैश करके वो टिकट का नाम देते हैं। किस तरह से आप ब्रांचेस बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग कोड कमिट किस तरह से कर रहे हैं। लाइक अज्यूम कि मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना रहा हूँ index.html पे तो काम किया होगा ना सबने। सर अगर हम गूगल पे शेयर स्क्रीन करेंगे ना जाके, तो ये एडिटिव जो कोडिंग दिख रहा है ना, तो सबको मैसेज नजर आएगी, जैसे आपकी शेयर स्क्रीन का ऑप्शन करेंगे। ठीक है, तो अभी लेट सपोज कि मैंने एक नई फाइल बनाई है अभी index.html। तो गिटहब का बेसिकली क्या होता है, आप जिस भी आईडी पे काम कर रहे हो तो आप उस आईडी में अपने पास एक्सटेंशन में जाके गिटहब लेंस आप इंस्टॉल कर लेते हो अपने पास। ठीक है, तो अब मैंने नई फाइल बनाई है index.html। तो यहाँ पे ये बता रहे यू, ठीक है। यू मीन्स कि आपने रेपोजिटरी में अपडेट्स किए हैं, और ग्रीन जो शो कर रहा है इट मीन्स कि आपने कोई नई फाइल क्रिएट की है, ठीक है। तो अब ये फाइल मैं चाह रहा हूँ कि ये फाइल मैं कमिट करूँ, मेरे क्लाउड पे जाए और मेरी इस फीचर होम की ब्रांच पे जाए। तो आप इसके लिए फिर हम लोग को क्या काम करना पड़ता है, हम लोग को पहले फाइल्स को ऐड करना पड़ता है, कमिट करना पड़ता है, फिर पुश करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐड करने का बड़ा सिंपल है, गेट ऐड और डॉट लिखेंगे आप, तो आपकी ये फाइल है ना, ये ऐड हो जाती है। अब आप देखेंगे तो यू की जगह पे ए आ गया, और इधर जाएंगे तो ये चेंजेस स्टेज में आ जाते हैं। स्टेज चेंजेस मीन्स के आपके पास जो लोकल चेंजेस थे वो आप स्टेज हो गए, आप उनको कमिट करके पुश करो। अब जैसे मैं कमिट बेसिकली क्यों यूज होता है, कमिट इसलिए यूज होता है कि आप कोई ना कोई मैसेज बताते हो कि ये चेंज मैंने क्यों किया है, या फिक्स ये जो मैंने बग फिक्स किया है ये क्यों किया है। तो आप जैसे मैं इसको कमिट में लिख रहा हूँ कि यार मैंने index.html की एक न्यू फाइल क्रिएट की, ठीक है। तो ये जो कमिट होगा ना, ये उस फीचर ब्रांच का कोई ना कोई पहचान होगी कि यार इसमें क्या चीज़ हुई थी इस कमिट में। अब जैसे आप लोग, ये अभी आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में काम करते हो तो जैसे 150 डेवलपर नहीं, चलो 50 डेवलपर से एक साथ काम कर रहे हैं, और कोई एक फीचर है छोटा सा, आपको जैसे होम पेज बना रहे हो, उस होम पेज में 100 कंपोनेंट्स हैं यूजेबल। अब उस 100 कंपोनेंट्स में से अज्यूम करें कि मैं किसी एक कंपोनेंट पे काम कर रहा हूँ और उसकी टाइपस्क्रिप्ट में मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया या मैंने कोई वैल्यूज को असाइन नहीं की, तो मैं पुश करूँगा तो क्या होगा कि अगर ये मैं कमिट मैसेज नहीं दूंगा तो मैं पहचान, और अज्यूम करेंगे प्रोडक्शन पे एप्लीकेशन फट गए, तो फिर लाइक मेरी वजह से उन 50 डेवलपर्स का भी जो है ना वो काम नहीं चल रहा होगा। फिर वो ऑन दी हॉट स्पॉट जो है आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि क्या बग आया था,
क्या इशू आया था, किस बंदे ने काम किया था जिसकी वजह से प्रोडक्शन पे फटी है, तो वो कमिट्स जो है फिर उन कमिट्स को रिवर्ट किया जाता है उन आईडीज के बेसिस पे। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फाइल बना के या कोई भी चेंज करते हैं तो हम लोग गिट एड स्पेस डॉट और उसके बाद हम लोग उसमें कोई ना कोई गिट कमिट डेश एन करके हम कोई मैसेज देते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे ऐड भी कर लिया, कमिट भी कर लिया ना, अब भी अगर आप गिटहब पे जाके देखेंगे तो आपके पास उस ब्रांच में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आप जब तक गिट पुश नहीं करोगे आपके वो चेंजेस क्लाउड पे नहीं जाते। सो व्हेन यू हिट गिट पुश, ठीक है, तो जो आपके चेंजेस थे लोकली वो अब ऊपर चले गए। तो अगर मैं जाता हूँ ऊपर अपनी उस रिपोजिटरी में, ठीक है, अब मैं जो है वो मेन ब्रांच पे खड़ा हूँ यहाँ पे। अगर आप मेन ब्रांच पे देखेंगे तो मेन ब्रांच पे मेरे पास index.html की फाइल नहीं आ रही यहाँ पे। अगर आप देखेंगे सिर्फ readme.md की फाइल आ रही है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से ब्रांच स्विच करता हूँ, फीचर होम में मैंने पुश किया था, तो अगर मैं फीचर होम पे जाऊँगा, लेट्स लो, ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे तो index.html की फाइल यहाँ पे रिकॉग्नाइज हो रही है और टोटल कमिट्स आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप ये रहा 2 कमिट्स लिखा है ना। अगर आप इस 2 कमिट्स में जाएंगे तो ये कमिट्स में बता रहा होता है कि जो मैंने मैसेज वहाँ पे दिया था ना कि मैं नई index.html की फाइल एडिट कर रहा हूँ और उस कमिट की आईडी आ रही होती है। अब ये जो ना ये लास्ट कमिट की मेरी आईडी है। अगर इस कमिट में कोई ना कोई बग होगा या कोई मैंने सेमीकोलन मिस किया है तो फिर डेवऑप्स की टीम्स वगैरह क्या करती है या मैं एज अ डेवलपर मुझे ये अपना कमिट रिवर्ट करना पड़ता है कि बाकी लोगों का काम चले। तो ये वाली जो ये देखें, ये मैंने लास्ट कमिट किया था। ठीक है, तो ये इसकी आईडी होती है। इसके बेसिस पे हम लोग कमिट को आगे पीछे कर रहे होते हैं, या मुझे एक ब्रांच से किसी और ब्रांच में कमिट चाहिए। गिटहब ये आधे घंटे का पौने घंटे का सेशन इज नॉट लाइक इनफ फॉर covering the whole GitHub. So the main concept is like you guys have to use GitHub before graduating from here. Industry is vastly using this software. ठीक है, अभी हमने कोड कमिटिंग देख लिया, मैंने कोड सिंकिंग आपको बता दिया, गिट पुश किस तरह से करते हैं, और मैं पीआर आपको बता देता हूँ। हाँ सर, अगर हमने कमिट कर दिया और हम दोबारा कोई उसी HTML फाइल में चेंज करने जा रहे हैं या कुछ और, फिर दोबारा गिट ऐड और हाँ सेम दोबारा उसमें ये चीज़ होती है। अगर लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे कोई भी कुछ नई चेंजेस मैंने ऐड करे, तो आप अगर अपने सोर्स कंट्रोल के आइकन में जाओगे तो यहाँ पे आपके पास जो चेंजेस है उन चेंजेस में आपको ये चेंजेस बता रहा होगा। अगर आप चेंजेस के टैब में उस पर क्लिक करेंगे index.html की फाइल पे, तो आपको ना इसका वर्जन इसकी दिखाएगा कि पहले ये मोहम्मद अवेश था और अब आपने जो है वो इसमें क्या किया है, ये वाला सेक्शन जो आपने ऐड किया, तो जो आपने सेक्शन ऐड किया वो ग्रीन डार्क ग्रीन करके कुछ दिखा रहा है। सही है, तो उसमें हम लोग ये कर सकते हैं, गिट ऐड डॉट का मतलब ये है कि आपने जो नई फाइल्स बनाई है वो भी ऐड कर देता है। अगर आपका किसी एग्जिस्टिंग फाइल में चेंज है, आपने कोई नई फाइल नहीं बनाई है, तो आप डायरेक्टली ये कर सकते हो गिट कमिट और इसको बता दो कि -a और -a। -a का मतलब ये कि जो मेरी एग्जिस्टिंग फाइल है मैंने उन्हीं में चेंजेस किया और उनका मैसेज लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखूंगा लगते हैं और ये टैग इनको चेंजेस कम करना। अब मुझे 2 कमांड चलाने की जरूरत नहीं। ठीक है, फिर अगर मैं अपडेट पुश करता हूँ तो क्या होगा कि ये जो मैंने चेंजेस किए हैं वो अपडेट हो जाएंगे। ये बस गिटहब की अगर आप लोग चीट शीट देखेंगे ना तो उसमें कभी कभार हम गिटहब बेसिकली बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसके लाइक बहुत ज़्यादा कमांड्स हैं और डेली खुद को लोग अपडेट कर रहे होते हैं, तो
हम कभी कभार ऐसा होता है कि हमें भी कमांड्स नहीं आती, कभी कभार निवेश करनी पड़ती है ब्रांचेस को, तो हम लोग भी अपने पास ये, अगर आप नेट पे सर्च करोगे गिटहब चीट शीट के नाम से, तो गिटहब ने एक शीट बना के रखी हुई है, उसमें उन लोगों ने सारी कमांड्स और डिस्क्रिप्शन एक या 2 पेपर की शीट है, वो भी हम लोग अपनी वर्क स्टेशन पे रखते हैं। तो आप जाहिर सी बात है कमांड हर कोई बंदा याद नहीं रख सकता, मेनली जो आपकी डेली यूज में होगी वो आपको याद हो जाएगी। तो गिटहब चीट शीट को सर्च करें ना तो आपको एक PDF फाइल मिल जाएगा गिटहब की तरफ से ही, वो आपको इजी हो जाएगा समझना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोड को कमिट करते हैं, पुश करते हैं। और दूसरा क्या था, हाँ मैं आपको बता, मेकिंग अ PR बेसिकली क्या होती है, PR इज अ पुल रिक्वेस्ट। आप जैसे लेट सपोज कि आपका कोई टेक्निकल लीड है, उस टेक्निकल लीड के अंदर आप 3-4 डेवलपर्स साथ में काम कर रहे हो, तो सर्टेन फीचर्स पे आप 5 डेवलपर्स काम कर रहे हो, तो 5 डेवलपर्स को जो है वो अपना काम इन टर्म्स ऑफ ब्रांचेस नहीं देना होता, वो अपनी ब्रांच में काम करके उसकी PR देते हैं। ठीक है, तो PR बेसिकली पुल रिक्वेस्ट होती है, वो आप टीम लीड को असाइन करते हो, टीम लीड उसको रिव्यू करता है, फिर उसको प्रोडक्शन में अपने पास टेस्ट करता है कि यार कोई फ्लॉ तो नहीं है, कोई और एग्जिस्टिंग चीज फट तो नहीं रही, फिर लाइक बिल्ड पाइपलाइन होती है वो चला के देख रहा होता है कि सब कुछ सही है, फिर वो उस PR को मर्ज करता है। तो पुल रिक्वेस्ट का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये कि आपका जो सुपीरियर अथॉरिटी है, आप उसको अपना काम असाइन कर रहे हो, तो वो रिव्यू करके देन मर्ज करता है। तो पुल रिक्वेस्ट के लिए गिटहब पे 3rd टैब है पुल रिक्वेस्ट, आप इसके अंदर जाओगे, यहाँ पे आप करते हो न्यू पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, अज्यूम करें कि मुझे एक टास्क असाइन हुआ था कि index.html की फाइल बनानी है और उसमें कुछ लिखना है, तो मैं वो अपना काम फिनिश कर लिया। तो यहाँ पे बेसिकली 2 ब्रांचेस का सीन होता है। अब इसमें जो एरो लेफ्ट की तरफ जा रहा है बेसिकली ये रिकॉग्नाइज कर रहा है कि आप यहाँ पे जो ब्रांच सिलेक्ट करेंगे वो ब्रांच आपको किस ब्रांच में उसका काम लेके जाना है। तो मैं इसको बता रहा हूँ कि यार मेरी ब्रांच है फीचर होम, उसमें जो मैंने काम किया ना वो मेन ब्रांच में मर्ज करवा दो। ठीक है, तो ये करूंगा, तो यहाँ पे ये मुझे बता रहा होता है एबल टू मर्ज। ठीक है, अब ये अगर एबल टू मर्ज नहीं बताएगा ना तो दैट मीन्स के आपने उसी फाइल के अंदर काम किया जिस फाइल में किसी और डेवलपर ने भी काम किया, तो वो यहाँ पे आपको बताएगा कि कांट ऑटोमेटिकली मर्ज और आपके फाइल में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आप उनको रिजॉल्व करें। ठीक है, तो अभी एबल टू मर्ज आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करूँगा। यहाँ पे मैं रिव्यूअर्स को असाइन करता हूँ कि मेरी टीम में जो रिव्यूअर्स होंगे, अब क्योंकि ये पुल रिक्वेस्ट मैंने अभी बनाई है, मैंने इसमें अपनी टीम के किसी भी लोगों को ऐड नहीं किया है। तो वैसे अक्रॉस होता है कि आप जब किसी नए प्रोजेक्ट पे हायर होते हो तो आपको उस रेपोजिटरी का एक्सेस देता है, उसमें ऑलरेडी टीम होती है। तो यहाँ असाइनीज में और रिव्यूअर्स में यहाँ पे पूरी लिस्ट आ रही होती है, आप जिसका नाम सर्च करोगे जो आपका टीम लीड है उसको आप सिलेक्ट करोगे, रिव्यूअर्स में भी और असाइनीज में। ठीक है, और लेबल्स ये कंपनी के बने बनाए होते हैं कि अज्यूम करें कि आपने किसी एनहेंसमेंट में काम किया, आपने किसी न्यू फीचर पे काम किया, तो ये आप इसमें ये सिलेक्ट करते हो। आपके पास जो शेयर कर दिए, आपकी स्क्रीन शेयरिंग हट गई है। ठीक है, अब मैं इस PR का बेसिकली मेन मकसद यही होता है कि आपको अपनी फीचर ब्रांच में से आपको किसी प्रोडक्शन ब्रांच में अपना काम मर्ज करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर मुझे कोई मैसेज होगा तो मैं लिख दूंगा, वरना बेसिकली मैसेज लिखने की कोई इतनी नीड नहीं होती है, आपके कमेंट्स ही उसको रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं। तो आप जैसे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करोगे तो आपने जिस बंदे को पुल रिक्वेस्ट असाइन की है वो उसके पास चली जाती है, वो बंदा बेसिकली सिंपली उसको रिव्यू करके देन स्क्वाश एंड मर्ज करता है। जैसे स्क्वाश एंड मर्ज करूंगा तो वो जो मेरी फीचर ब्रांच है, फीचर होम, उसका काम अब मेन ब्रांच में जा चुका है। ठीक है, तो अब अगर मैं अपनी रेपोजिटरी में जाऊंगा तो अगर मैं मेन ब्रांच पे भी खड़ा हूँ तो मेरे पास index.html की फाइल आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पुल रिक्वेस्ट बनाते हैं, इसी तरह से जो है वो टीम लीड उसको बोले। मैं समझा नहीं। अगर कोई और कंट्रीब्यूटर है प्रोजेक्ट और उसने कोई ब्रांच बनाई है, तो हमने भी डिफरेंट ब्रांच में काम किया, तो पुल रिक्वेस्ट के थ्रू हम उसकी ब्रांच में भी अपने को मर्ज कर सकते हैं इसमें। वो बेसिकली उसके लिए स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप जब भी अपनी पुल रिक्वेस्ट बनाते हो तो आप अपनी फीचर ब्रांच को मेन ब्रांच से मर्ज कर लो। जैसे अज्यूम करो कि मैं एक डेवलपर हूँ, डेवलपर ए है, डेवलपर बी है। ठीक है, अब एक मेन ब्रांच है, मेन प्रोडक्शन ब्रांच है। अब डेवलपर ए का कोई ऐसा काम है जो जिस पे आप डिपेंडेंट हो, आपको वो काम चाहिए।
तो आप क्या करोगे, पहले डेवलपर ए को मैनेजर के थ्रू बुलवाओगे या आप खुद बोलोगे कि यार आप अपना काम मर्ज करो क्योंकि आपका मुझे काम चाहिए। तो वो अपना काम कमिट करके मर्ज करेगा, टीम लीड उसका काम प्रोडक्शन में मर्ज करेगा, आप प्रोडक्शन की ब्रांच अपनी फीचर ब्रांच में मर्ज करोगे, मतलब वो काम आप लोगे। आप किसी भी डेवलपर की ब्रांचेस आपस में मर्ज नहीं करोगे, क्योंकि अगर उसने कोई मसला दिया होगा अपनी ब्रांच में तो आपने जो काम किया वो सारा खराब हो जाएगा। तो टीम लीड की जिम्मेदारी होती है कि वो उस ब्रांच को रिकॉग्नाइज करे कि इसमें काम सही है, वो काम प्रोडक्शन में जाएगा, प्रोडक्शन ब्रांच को आप अपने पास मर्ज करोगे फीचर ब्रांच बनाने से पहले। इट मीन्स कि आप प्रोडक्शन के साथ सिंक हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टेड पीआर फिर मैनेजर आपको दोबारा बोलता है कि यार इसके कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हो। ठीक है, तो बाकी रिव्यूइंग पीआर और मर्जिंग का बेसिकली बहुत लेटी कॉन्सेप्ट है, तो अभी टाइम भी हो गया, लाइक इसको कवर नहीं कर पाएंगे, तो मोस्टली नेक्स्ट एडवांस सेशन में मैं इसको रिव्यू करवा दूंगा। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। सो अगर आपको मुझसे कांटेक्ट वगैरह करनी है, सर इसका एक बार टाइटल अब्दुल रहमान सबको बोलो शुरू। बिल्कुल ये बता कि